presenting a bouquet of swaras on the occasion of our revered Guruji, Padma Bhushan Pandit Devu Chaudhary. Moreover, it becomes special because today we are presenting a beautiful raga created by Guruji, Rag Visveswari. So, it is actually, it had happened during lockdown in April, just before passing away. Guruji was teaching us this Rag Visveswari, and he used to say, सीखो इसको, सीखो अच्छे से, कोई सिखाएगा नहीं. So I have some of those very lovely videos where Guruji used to spoon feed us. हमें आगे बढ़ के सिखाते थे उनके अंदर वो बात कि जो है मेरे से भी सीखो. So it is a big opportunity for all of us, Saptarishi Bhai, myself, and a rising star in the world of music, Maestro Adiraj. Now why I am saying this? Because many of the compositions given to us directly by Guruji remains within our gharana, so it becomes our duty to bring it in light. So our musical offering, Raga Visveswar. Srimati Hema Singh is a well-known actor and alumni of Sardar Patel Vidyalaya, New Delhi. She completed her graduation in political science from Miranda House. A graduate of National School of Dramas, she has worked with NSD Repertory Company as an artist for many years. At present, she is an associate professor of acting at the National School of Drama and is active with her work as an actor, director and writer. As an actor, Hema Singh has worked with eminent theatre directors such as B.B. Karat, K.V., Richard Keshner, Amal Alana, K.N. Panikkar, and Ibrahim Alkazi, to name a few. She is known for her work in the field of Parsi theatre and poetry presentation on stage. Hema Singh has assisted the famous Parsi-style actor Master Fida Hussain Narsi and has directed many productions in Parsi style. She has taught voice and speech and acting at NSD, SRC, MP Drama School and Bhartendu Natya Academy. She has widely traveled abroad to perform and to conduct workshops on theatre. She has written analytical articles on theatre and has translated plays and was theatre critic for Jansatta. Her translation of Strindberg's A Dream Play has been published by Sahitya Academy, New Delhi. She was awarded with NSD's prestigious Manohar Singh Smriti Award for her contribution to theatre in 2008 and the Sangeet Natak Academy Award for her contribution to Indian theatre as an actor. UMAC is honoured to bestow upon her the Pandit Devu Chaudhary Lifetime Achievement Award for the year 2026. Srimati Hema Singh.
नमस्कार सर। ये प्रोग्राम आज यहाँ पे थिएटर भी हुआ है और सितार वादन, और तो अधिराज चौधरी जी उनके ग्रैंडसन है एंड ही परफॉर्म्ड ऑन सितार। तो आपका स्वागत है। तो आप अपने दादा के, आपने बताया मुझे कुछ थोड़ा और चर्चा करेंगे। जी मैंने मेरे दादाजी, मैंने कहा था कि जी उनके बारे में तो जो भी मैं कहूँ बहुत कम है, क्योंकि मैंने उनके अंदर अपनी इच्छा शुरू करी थी म्यूजिक में जब मैं 6 साल की उम्र का था, और शुरुआत से ही मुझे उन्होंने अपने पास ही रखा कि जहाँ भी वो क्लासेस लेते थे, जब भी अपने क्लासेस वगैरह लेते थे तो मैं वही होता था। तो मेरे बचपन से, जब मैं बहुत छोटा हो गया था 2-3 साल का, तब से ही मेरे अराउंड पूरा म्यूजिक का माहौल रहता था। जबकि उनके स्टूडेंट्स आते थे वो उनको सिखाते थे, तो ऐसे कर करके मेरे म्यूजिक डेवलप हुआ। फिर मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट आया, फिर मुझे उनसे सीखने का बहुत मौका मिला, और उन्होंने मुझे गाइडेंस दी बहुत अच्छी, और उन्होंने मुझे सिखाया भी, जस्ट सिखाया ही नहीं, उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि जिंदगी कैसे जीनी है और म्यूजिक को कैसे निभाना है, और हमारे घराने की स्पेशलिटी उन्होंने सब मुझे बताई। और बस ही वॉज अ मेंटर फॉर मी फॉर माई होल लाइफ, एंड ही टॉट मी हाउ टू लिव माई लाइफ एंड ऑल्सो हाउ टू प्ले, एंड हमारे घराने की जो भी चीजें और घराने की क्या स्पेशलिटीज और घराने को कैसे आगे लेके जाना है, और मैं कर सकता हूँ जो मेरे हित में हो, जो भी मैं कर सकता हूँ I will do it, and I just want to pay my tribute to him. हम लोग बताना चाहेंगे कि अभी जो परफॉर्मेंस थी उसमें डॉक्टर सुदीप सर थे एंड द होल टीम, आई थिंक इट वाज मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस, एंड हम लोग आपको शुभकामनाएं देंगे एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड मेनी मोर अवार्ड्स। Thank you so much. धन्यवाद। तुम्हें याद आता है? हाँ, क्योंकि अब उसमें कोई नॉवेल्टी नहीं रह गई ना। कोई कहानी छप जाए तो छप जाए, रिजेक्ट हो जाए तो रिजेक्ट हो जाए। पहले ऐसे लगता था कि बस एक कहानी छप जाए तो दुनिया बदल दूंगी, लेकिन अब कहानी छपेगा मैं, कोई भी नोटिस नहीं। नहीं, मुझे लगता है क्यों तुम्हें अपनी आग में शादी में आग पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। तुम चलोगे तो धुआं पूरे घर में घुसता है। तुम्हें लगता है कि अकेले सफर कर रहे हो, तुम्हारी चुप्पी मेरे झगड़ों में घुस जाती है, और तुम्हें लगता है कि मैं ये सब जानबूझ के कर। तो प्रॉब्लम है नहीं ना। अगर कोई जानबूझ के लड़े उसके साथ लड़ा जा सकता है, मतलब कोई रोज अनजाने में कोई थोड़ा आपको हर्ट करते रहेगा, उसके साथ रहना मुश्किल, क्योंकि वो हर बात में कहते हैं नहीं क्यों कहो, मैं तो उसकी ही नहीं। तुमने भी तो मुझे बाहर रखा, तुम्हारे अंदर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे, तुम्हारी आंखों में ना पति का एक डिजाइन रहता है। तुम चाहती हो कि मैं वैसा बनूं। मैं चाहती हूँ कि बस तुम प्रेजेंस रहो, उपस्थित डांस। तुम्हारे लिए प्रेजेंट का मतलब है तुम्हारे हिसाब से बिहेव करना, क्योंकि अगर मैं पोलाइट हूं तो मैं वीक हूं, अगर मैं शांत हूं तो मैं बोरिंग हूं, और अगर मैं प्रैक्टिकल हूं तो मैं कॉम्प्रोमाइज, अगर मैं थका हूं तो अरे मैं तो सेल्फ पिटी में हूं, और अगर मैं बोलता हूं तो मैं डिफेंसिव हूं, और अगर मैं चुप रहता हूं तो मैं इमोशनली अनअवेलेबल हूं। मैं क्या करूं नैना? सच तो ये है कि मैं डरता हूं, कि मैं एवरेज हूं। दोस्तों हमारे साथ कुमकुम जैन है, जो आज एक प्ले हुआ है जो राहुल दक्ष एंड उसके साथ हमारे अदर आर्टिस्ट अभी ज्वाइन करेंगे। सो मैम, द परफॉर्मेंस, आई थिंक एवरीबडी, इट वाज अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। Thank you. सो आपके थोड़ा सा, यू वुड लाइक टू गिव योर ओन इंट्रोडक्शन, सिंस हाउ लॉन्ग यू बीन इन आर्ट? So I think I started drama just after my schooling. So as a drama voice in All India Radio. So my अच्छा तो मेरी, अगर मैं कहूँ मेरी ड्रामा की यात्रा जो है वो मैं 12th के बाद आफ्टर स्कूलिंग शुरू हो गई थी।
फर्स्ट ईयर से एज अ ड्रामा आर्टिस्ट इन ऑल इंडिया रेडियो। तो ड्रामा सेक्शन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद फिर कैमरा भी फेस किया और फिर धीरे धीरे फिर थिएटर शुरू हुआ। तो मेरा उल्टी यात्रा रही है। लोग थिएटर से रेडियो और टीवी पे जाते हैं, मैं रेडियो और टीवी करने के बाद थिएटर पर आए। अभी वी वर टॉकिंग टू द ऑडियंस से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो आज की जीवन की सच्चाई है उसको दर्शाया है। तो मैंने उनको बोला कि जब हम लोग स्कूल डेज में 10th क्लास में थे तो सब पूरा हो जाते थे, सम काइंड ऑफ सिमिलर यू नो थिंग्स होती थी उस जमाने में। तो आप क्या बोलना चाहेंगे अबाउट दिस स्टोरी? इस स्टोरी पे मेरा राहुल के साथ काफी बस एक दूसरे के बाल नहीं खींचे थे हमने। काफी हमारी मतलब बहस हुई थी नैना को लेकर, खासतौर से कि मुझे लगा कि ये मतलब अभी थप्पड़ खाने के बाद भी फिर इतनी बात कर रही है, ये फिर फिलॉसफी झाड़ रही है। पर देन फिर समझ में आया कि हाँ, आम जिंदगी में यही होता है। लोग जैसे पिंजरे में दो शेर होते हैं, लड़ते हैं, थकते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर लड़ते हैं, थकते हैं, फिर बैठ जाते हैं, पर कहीं जाते नहीं है। परफेक्ट। आई थिंक इन्होंने जो एंड में बोला है, ये अगर लोग समाज में समझ जाएं तो जो हमारे समाज में एक हो रहा है ना कि कपल्स आर नॉट जो हस्बैंड है वाइफ है, हाँ, द डिवोर्स रेट विल कम डाउन, तो उसमें भी बर्डन कम होगा। सो थैंक यू मैम, कुमकुम जी से परिचय। अभी हम लोग जो राहुल है उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं, सो इफ यू वेट वी विल टेक अ ब्रेक। थैंक यू। अभी आज हम लोग त्रिवेणी में हैं और नाटक मंच का अभी आपने नाटक देखा है। उससे पहले जो पंडित देवेंद्र चौधरी जी का पद्म भूषण, उनकी 91st एनिवर्सरी मनाई गई, तो सितार वादन हुआ और आप स्टेज पे थे मैम, तो आपको कुछ दो शब्द बोलने उनकी याद में? देखिए, मैं रंगमंच से हूँ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाती रही हूँ और वहीं से पास आउट हूँ। मैंने अपने रंगमंची जीवन में ये सीखा है कि म्यूजिक और थिएटर का बहुत गहरा रिश्ता है। इतना गहरा रिश्ता है कि अभिनेता जो है वो बहुत सारे सुरों में बातचीत करता है, अपने उसके संवादों में एक अनकही लय होती है। तो देवू जी जो है, जो सितार उन्होंने की जो धुनें बनाई, जो हमने सुनी, वो इतनी मधुर थी, वो याद दिलाती है कि हमारे शास्त्रीय संस्कृत नाटक में या फोक नाटक में किस तरीके से म्यूजिक इवॉल्व हुआ है। और अच्छी बात है कि उन्होंने सितार वादन किया। और मैं आज मेरी एक कुलीग ने मुझे इस पर बधाई देते हुए कहा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पे, कि वो उनके गुरु रहे हैं। तो बहुत बधाई हो। तो इस तरह से अवार्ड मिलना मुझे एक बहुत सुंदर दुनिया के साथ जोड़ता है और मुझे अच्छा लगता है। अभी जो आपने बोला NSD का जो अभी समर थिएटर फेस्टिवल हुआ था, आप जरूर गए होंगे उसमें? जी, मैं समर थिएटर फेस्टिवल जो है वो बच्चों के लिए होता है। हाँ जी। और रेपर्टरी कंपनी में मैं तो 10 साल रही हूँ। चित्ररंजन जी हाँ, चित्ररंजन जी को मैंने पढ़ाया है। तो मतलब हम बहुत जवान थे उस समय, लेकिन चित्ररंजन जी बहुत काबिल व्यक्ति हैं और अब स्कूल का एक दूसरा चेहरा, नया जवान चेहरा है, युवा चेहरा है और बहुत तरह के काम। आप भी अपना परिचय देते जाइए। मैं, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम हेमा सिंह है और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हूँ। 10 साल मैंने हमारे बच्चे में काम किया और फिर मैं 18 साल तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वॉइस एंड स्पीच टीचर की प्रोफेसर रही और अब मैं सर्वजन रूप से काम कर रही हूँ। और एक सीरियल आता था कैरी, कलर्स चैनल पर आता था बहुत पहले, 10 साल पहले। उस समय एक बहुत ही खराब मदर इन लॉ का रोल करती थी, मैं बोलती थी। मैं शायद जिन लोगों ने देखा हो वो पहचान ले मुझे, लेकिन हम लोग तो बहरूपिया है ना। We'll like to watch it. Please, you can go and Google. You can Google. और मैं बताना चाहूंगा कि आज अजय चौधरी जी
जो IPS स्पेशल कमिश्नर है, उनके हाथ में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गर्व की बात थी। धन्यवाद। हमारे साथ जो आज को स्टार है प्ले के निखिल दीवान सर। यस, अभी सर ने आपका परिचय दिया है कि when you were 13-14 तो आप you got into, sir. I was 13-14 when I came to Mandi House. I had no idea where is Mandi House theatre कहाँ। हाँ जी, मैं 13 या 14 साल की उम्र में मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग में आना है, अभिनय करना है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दिल्ली में ये सब कहाँ होता है। तो मेरे लिए सब कुछ था दूरदर्शन। तो मैं दूरदर्शन पहुंच गया, RBI के सामने जो है, और उन्होंने फिर मुझे बोला एक जगह है मंडी हाउस, वहां जाओ, वहां पे थिएटर होता है। मैं यहाँ आया, मुझे कुछ पता नहीं किससे मिलना है क्या है। एक व्यक्ति है राजधान, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, वो मुझे मिले। उन्होंने कहा कल आओ, मैं कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। तो उन्होंने मुझे मिलवाया कुछ लोगों से, और सुरेंद्र सागर जी वो इंसान हैं जिनके साथ मैंने अपना थिएटर का सफर शुरू किया। मैं अगर 13-14 साल के थे तो मुझे याद है ये इनकी तब नई नई शादी हुई थी, 1 महीना हुआ था। मैं पहली बार भाभी से मिला, और उसके बाद फिर थिएटर का सफर, टेलीविजन का सफर, फिल्म्स का सफर चलता रहा। एक चीज जो कॉमन है तब से और अब में, वो है स्टेज। और ये आपका यूथ के लिए, जो हमारा युवा है, उसके लिए क्या मैसेज है? ये भी तो यूथ है सर। नहीं सर, यूथ के लिए मैसेज ये है कि मुझे आजकल, जो मैं पिछले इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, तो बहुत यंग लोगों के साथ काम किया, और कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, और कुछ लोग, आई एम सॉरी, मतलब इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ चेहरा अच्छा है या बॉडी बना ली है तो हम एक्टर बन सकते हैं। वो नहीं होता। अभिनय सिर्फ चेहरे या बॉडी से नहीं होता। अभिनय में बहुत सारे रंग होते हैं जिनको भरना पड़ता है। तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, 2 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। एक तो संघर्ष, बिकॉज एक इंग्लिश की लाइन है, वेटिंग इज एन एक्टर्स कर्मा। तो वेट तो करना ही पड़ेगा आपको काम की। और दूसरा, जितना हो सके अपने अभिनय के स्किल को अच्छे से अच्छा कर। तो आज जो कहते हैं ना बॉक्स ऑफिस, तो ये जो हॉल था, इसमें जगह नहीं थी। पीपल वर देयर वर मोर देन 500 पीपल्स वेटिंग आउटसाइड, एंड वो बोला गया कि हाउसफुल है। तो व्हाट्स योर मैसेज, आपका क्या है? सर बस एक एक्टर के लिए, सबके लिए सब नहीं, ये एक किसी भी अभिनय करने वाले, रंगमंच करने वाले, नॉट अभिनय, चाहे वो लाइट्स कर रहे हैं, चाहे डायरेक्शन कर रहे हैं, चाहे एक्टर कर रहे हैं, उनके लिए शायद इससे बड़ा तोहफा कोई हो ही नहीं सकता कि उनके लिए लोग बाहर वेट कर रहे हैं और पूरा हॉल भरा हुआ है। तो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर एनी थिएटर आर्टिस्ट। सो थैंक यू वेरी मच। जैसे हम लोगों ने बोला कि एवरीबॉडी, अभी राहुल ने बोला कि नेक्स्ट जब भी होगा सो विल इन्फॉर्म। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं और मैं राहुल दक्ष जी को माइक देता हूँ। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्ले का, और सागर सर का इंट्रोडक्शन, और आपका क्या जो प्ले था। आई थिंक बहुत ज्यादा लोगों ने इसको सराहा है। जी धन्यवाद। प्ले इसके पीछे, इसके लिखने के पीछे कुछ वजह हैं। जैसे दिल्ली में थिएटर करना थोड़ा सा मुश्किल है बड़े ग्रुप्स के साथ, और आजकल ज़माना बहुत बदल गया है। लोग पहले से पूछते हैं कि क्या मिलेगा, और बहुत सारी बड़ी टीम को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ये सोचा कि थिएटर तो करना है, तो कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि मिनिमम कास्ट हो, सेट चेंज ना हो, उस तरीके से कोशिश करते हैं 2 लोगों के साथ। तो मैंने उसी चीज को ध्यान में रख के, दूसरा एक पुरानी जो प्रथा चली आ रही है कि वो बहुत पुराने नाटक लोग उठा रहे हैं और उसको कर रहे हैं, बार बार वही रिपीटेशन हो रहा है। तो मैंने सोचा कुछ नया। आजकल वक्त बदल गया, जेनजीज का जमाना है, कॉर्पोरेट हावी है। तो मुझे लगा है कि कॉर्पोरेट कपल की कहानी मेरे जहन में आई, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो उनमें प्यार है, तकरार है रिश्तों में, वो कैसे दर्शकों के सामने लाई जाए, उसको ध्यान में रखे हुए मैंने ये नाटक लिखा जिसमें 2 कास्ट है। अब सागर सर का इंट्रोडक्शन करेंगे और आप भी 2 शब्द बोलेंगे सर। और नाटक लिखते समय मेरे जहन में यही था कि कैसे होगा। सागर जी वन ऑफ द मोस्ट सीनियर थिएटर पर्सन इन दिल्ली, तो सागर भाई के अंडर गाइडेंस में हमारी सारी चीज़ें हुई। तो मैंने इनसे कहा ये प्लान है ना, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने पूरा हमारे साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, आशीर्वाद देते रहे, सपोर्ट करते रहे। तो इस तरीके से उन्होंने किया इनके गाइडेंस में। तो सागर जी आप नाटक के बारे में और आज के और कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहले तो मेरे छोटे भाई राहुल को बहुत बहुत बधाई। इतना बढ़िया नाटक लिखा है इसने, बहुत ही बढ़िया। जो अभी इसने कहा कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी कास्ट के प्ले लेकर के, जैसे हम लोग कहीं बाहर भी जाना का सोचते हैं ना कभी,
तो लोग पूछते हैं भाई कितने लोग हैं, कितनी टीम है, सर कोई बोलता है 20 लोग हैं, तो वो सोचते हैं कि यार 20 लोगों को रहना है ना, सब करना, आना जाना, तो छोटी कास्ट के प्ले अक्सर लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये जो इसने कोशिश की है, ये जो लिखा है इसने, बहुत कमाल का प्ले लिखा, और ये मतलब ये सच्चाई है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो ना आज के जो यूथ, ये जो बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, ये सब ये अक्सर होता है इनके घरों में। तो ये कहानी इसके दिमाग में कैसे है, ये कमाल की बात है, लेकिन लिखा बहुत बढ़िया, कमाल, मुझे तो बहुत मजा आया। मैं जोड़ना चाहूंगा, अभी कुमकुम जी से हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द आखिर में बोला कि पिंजरे में जब दो शेर होते हैं, लड़ते हैं, लेकिन आपस में फिर बैठ जाते हैं। हाँ। तो मैं क्या उससे सीख मिलेगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, जो अभी हमारे इंडिया के डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, जब पोस्ट बर्डन हो रहा है, हाँ। तो शायद इस नाटक से एक सोशल मैसेज बहुत जाएगा। इस नाटक से सबसे बड़ा मैसेज ये जा रहा है कि पहले एक जमाना था, बहुत पहले होता था कि बहुत लड़ाइयाँ तकरारें हो रही हैं, उसके बाद भी रिश्ते बने हुए हैं। फिर अभी जो दौर चल रहा है वो थोड़ी सी आपके में नोकझोंक हुई और वो रिश्ता टूट जा रहा है। तो हमने कोशिश ये की है कि आप लड़िए, एक दूसरे की सच्चाई को सुनकर भी रिश्ते में बने रहने की हिम्मत आप में है, वो देखिए। क्या आप उस लेवल पे आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, जब बहुत कुछ आपको ऐसा सच पता चले जिसको आदमी नहीं झेल सकता, उसको झेलने के बाद भी रिश्ते में बने रहने की ताकत को दर्शाता है दोस्त डेज। सर, आप निखिल जो अपने को स्टार थे इसके बारे में उनका थोड़ा सा परिचय बता देंगे। निखिल दीवान, निखिल दीवान मैं जब मंडी हाउस में थिएटर कर रहा था, तो ये शायद 14-15 साल का रहा होगा, तो ये तब हमारे पास आया था। तो तब से आज तक हम लोग साथ हैं, और पता नहीं कितने नाटक हम लोग साथ कर चुके हैं। हम लोग बहुत सारे नाटक किए, और एक तो मतलब यादगार नाटक कुछ ऐसे हैं, जैसे जब सौरभ शुक्ला, आज बहुत बड़ा नाम है, वो उनका पहला दूसरा नाटक जब उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया था, तो हमारे साथ ही शुरुआत हुई थी। उसमें निखिल भी था, मैं भी था, एक प्ले था हमारा, और वी फ्रॉम द ब्रिज, कृष्णकांत के एक सीरियल आता था सिग्मा, स्पेस सिटी सिग्मा, उसके जो मेन कमांडर तारा जो थे एक्टर, उन्होंने वो प्ले डायरेक्ट किया था। तो तब से हम सब लोग साथ में हैं, और धीरे धीरे फिर ये बॉम्बे शिफ्ट हो गए, बॉम्बे में बहुत सारा काम किया, फिर दिल्ली आ गए, तो लेकिन हम लोग टच में हैं दोनों। बेसिकली हम लोग इस तरह के लोग हैं कि हमने बॉम्बे में संघर्ष नहीं चुना, हमें पता है कि हमारा टैलेंट क्या है। हम जब बॉम्बे हमें बुलाता है, हम वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, और हमें दिल्ली की जिंदगी बहुत पसंद है, तो हम वापस बैक टू बेस आते हैं, यहाँ काम करते हैं और खुश रहते हैं। सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आखिर में आपको जानकारी के लिए, अभी हम लोग ने जो मैडम हिमा जी, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी जी, तो बात हो रही थी एनएसडी की। मैं उनसे पूछा था समर थिएटर फेस्टिवल, बोली वो तो बच्चों का है। तो मैं कहा चित्रंजन जी से अभी हम लोग मिलके आए थे, तो बोली ही वाज माय स्टूडेंट, तो बोली कि मैंने उनको पढ़ा, मतलब शी यू नो ही हैज बीन, तो दैट वाज वेरी वेरी, मतलब लगती नहीं है ना कि मुझे लगता नहीं है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आपके हम लोग को कमेंट्स आप लोग लिखिएगा, एंड जो भी आपको कुछ और सजेशंस हो, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। संजय अग्रवाल, मैं रूप सिंह, धन्यवाद।